Hello, children. Today we are going to read a story from Class 5 English NCERT textbook. Name of this story is The Talkative Barber. Talkative means someone who talks very much. So this is a describing word for a barber. Talkative describes his nature. So it is a describing word. Let's read the story. The Talkative Barber. Long, long ago, a sultan whose name was Sharihar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. So, this story, The Talkative Barber, is from Arabian Nights. Let's read the story now. In the city of Kashgar lived barber who was a great talker. Once the sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? So, once in the city of Kashgar there was a barber. और वो बार्बर बहुत बात करता था. ही वॉज वेरी टॉकेटिव. तो एक बार सुल्तान ने उसे बुलाया. क्यों बुलाया? टू शेव हिज हेड. लेकिन बार्बर ने आते ही नॉन स्टॉप बातें करना शुरू कर दिया. तो सुल्तान को बहुत गुस्सा आया और उसने उससे बोला कि तुम बातें बंद करके अपना काम कब करोगे? द बार्बर रिप्लाइड, You do me an injury by calling me a chatterer. For everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. Their names are Buckbon, Buckburia, Buck, Alkuz, Alnashi, and Shaka Buck. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. तो इस बात पर बार्बर ने बोला कि आपने मुझे बहुत हर्ट किया कि मुझे चैटरर बोला. चैटरर मतलब कि जो बहुत बातें करता है, क्योंकि सब तो कहते हैं कि मैं बहुत चुप रहता हूँ. फिर उसने अपने ब्रदर्स के बारे में बताया. उस बार्बर के कितने ब्रदर्स हैं? ही हैव 6 ब्रदर्स. और उनके नाम उसने बताए और कहा कि उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम है. एक हम्पबैक्ड है, एक टूथलेस है, एक हाफ ब्लाइंड है, एक पूरी तरह ही ब्लाइंड है, एक डेफ है और एक के स्पीच में प्रॉब्लम है. और वो सारे के सारे बहुत बात करते हैं. लेकिन ये जो बार्बर है ये सबसे छोटा है. ही इज़ द यंगेस्ट वन इन हिज फैमिली एंड ही इज़ वेरी क्वाइट. ऐसा इस बार्बर ने सुल्तान को बताया. गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience. And send him away. I will not be shaved today. अब सुल्तान को और गुस्सा आया और उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि वो और वेट करे. तो उसने कहा कि इसको 3 गोल्ड कॉइन्स दे दो और इसको भेज दो. आज मैं अपना हेड शेव नहीं करवाऊंगा. माई मास्टर, क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम हियर टू सीक यू. इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. So I will not quit your house till I have shaved you. तो इस पर बार्बर ने कहा कि मैं खुद यहाँ चलकर नहीं आया था, आपने ऑर्डर देकर मुझे यहाँ
बुलाया था। तो अब जब तक मैं अपना काम नहीं करूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. उसने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की जो आधे घंटे तक चली। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने फिर उसे बोला कि तुम अपनी ये लंबी लंबी स्पीचेस देना बंद करो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बाहर भी जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me. Speak no more," ordered the Sultan. तो उसके बाद सुल्तान को और गुस्सा आ गया, तो बार्बर ने उसे समझाया कि आप गुस्सा मत कीजिए, अभी मैं आपके हेड को शेव करना शुरू करूँगा। और उसने उसके हेड को शेव करना शुरू किया वॉश करने के बाद, लेकिन 4 बार भी रेज़र टच नहीं किया था उसके हेड के साथ। और उसने सुल्तान को बोलना शुरू किया कि माय मास्टर, यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, कि आप इस मैटर में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हो। तो उस पर सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि अब तुम कुछ मत बोलो और मेरे हेड को शेव करो। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Finish shaving me at once, the Sultan exclaimed. But instead of doing this, the barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. तो बार्बर ने फिर उसे बोला कि आप पेशेंस रखो, मतलब थोड़ी तसल्ली रखो, और आपने मुझे अभी तक बताया ही नहीं कि आप किस ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हो। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं उस पर आपको अपनी ओपिनियन यानी कि अपनी राय दूंगा। तो इस पर सुल्तान ने फिर चिल्लाया कि जल्दी से शेविंग करना फिनिश करो। और अभी उसने बार्बर ने थोड़ा बहुत ही शेव किया था और वो देखने चला गया कि टाइम क्या हुआ है। इस पर सुल्तान ने कहा, माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, कि उसका जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो गया है। पेशेंस मतलब कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कितना कर सकते हो, उसको पेशेंस कहते हैं। बी काम, माई मास्टर, and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. तो उस पर बार्बर ने फिर सुल्तान को यही समझाया कि बी काम मतलब आप शांत रहिए, मैं अभी जल्दी ही आपके हेड की शेविंग ख़त्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो शेविंग करता रहा, लेकिन उसने बातें करनी बंद नहीं की, वो कंटिन्यूसली बात करता ही जा रहा था। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। तो बार्बर ने फिर बोला कि अगर आप मुझे बताओगे कि क्या ज़रूरी काम है तो मैं आपको अपनी एडवाइस दे सकता हूँ, हो सकता है वो आपके काम आ जाए। दिस सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेडअप बाय नाउ, और सुल्तान बहुत ज़्यादा फेडअप हो गया था। And decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. और फाइनली सुल्तान ने बता दिया कि वो अपने कुछ फ्रेंड्स को फीस्ट देने वाला है। फीस्ट मतलब दावत पर उसने बुलाया है, और इस वजह से ही उसको जाने की जल्दी है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed,
That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations. इससे सुल्तान को याद आ गया कि कल उसने भी अपने 4-5 दोस्तों को इनवाइट कर रखा है आज अपने घर आने के लिए, और वो भूल गया और उसने कोई तैयारी नहीं की. For them, the Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. तो अब सुल्तान जो उसके भरोसे बैठा हुआ था, बार्बर के भरोसे, तो वो कुछ भी करने को तैयार था उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. तो उसने ऑर्डर दिया कि अब जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश कर दो, तो जो खाना आज बनवाया है मैंने अपने दोस्तों के लिए वो तुम ले जाना सारा. प्लीज़ शो मी दी फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. तो इस पर उसने बार्बर ने क्या कहा कि मुझे खाना दिखा दो ताकि मैं जज कर सकूं कि मेरे 5 दोस्तों के लिए वो बहुत रहेगा कि नहीं. आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम. But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. तो सुल्तान ने फिर उसको समझाया कि मेरे पास बहुत सारा खाना है, और उसके बाद उसने वो खाना वहाँ पर मंगवाया ताकि बार्बर उसको देख सके. The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruits should also be brought in. तो अब बार्बर ने बोला कि मुझे डेजर्ट में कुछ फ्रूट्स भी चाहिए. डेजर्ट मतलब खाने के बाद जो कुछ मीठा दिया जाता है. तो सुल्तान ने डेस्परेशन में मतलब जल्दी में कि उसका काम फिनिश हो जाए बोला कि फ्रूट्स भी लाए जाएं. उसने फ्रूट्स भी मंगवा लिए. The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. तो इसके बाद बार्बर ने शेविंग छोड़ दी और एक एक डिश को ध्यान से देखने लगा. इसके बाद उसको आधा घंटा और लग गया. The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." अब सुल्तान जो है वो बहुत इम्पेशेंट हो रहा था. इम्पेशेंट मतलब पेशेंट का ऑपोजिट होता है इम्पेशेंट. तो पेशेंट उसको कहते हैं जो वेट कर सकता है, जो शांत रहता है वेट करते टाइम. और अब सुल्तान को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था कि वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है, लेकिन बार्बर तो धीरे धीरे अपना काम कर रहा था. फिर वो रेज़र उसने लिया, अपना काम किया और फिर से वो रुक गया और बोला कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने जेनरस हो, मतलब आप इतना मतलब दूसरों के बारे में सोचते हो, उनका ख्याल रखते हो, उनको इस तरह से आप चीज़ें दे देते हो. नाउ let's look at some new words from this story. First is chatterer. Chatterer means someone who talks a lot. जो बहुत बातें करता है उसको हम chatterer कहते हैं. Defect. Defect means a fault, मतलब कोई कमी. Opinion. Opinion means what a person thinks about a person, thing or object. मतलब किसी व्यक्ति की सोच. वो किसी व्यक्ति के बारे में भी हो सकती है, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है. Exhausted. Exhausted means tired and fed up. Dessert. Dessert means a sweet dish served after the main meal. Examine. Examine means to look something very carefully. किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना. At length.
At length means at a stretch. मतलब एक बार में. Now read this story yourself and revise its new words. Thank you.